अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम SOC 401 कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के मिड टर्म प्रिपरेशन करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन MCQ नंबर 1। Which descent type depicts a person as being related equally to both sides of the family? Bilateral descent. Bi means two, यानी कि दोनों तरफ से आप equally relate करते हैं, अम्मा की साइड से भी अब्बा की साइड से भी। MCQ number 2. The examination of how different cultures produce, distribute, and consume goods is known as economic anthropology. Which type of interview involves a minimum of control by the interviewer? Unstructured. और जिसमें control ज़्यादा हो उसे कहते हैं structured interview. Which process led men to move to cities for cash earnings, often leaving women to undertake agricultural work? Urbanization. What is the term for a detailed anthropological study of a culture undertaken by a researcher? Ethnography. ये जब एक कल्चर की डिटेल स्टडी करते हैं तो उसे एथनोग्राफी कहते हैं, और दो या दो से ज़्यादा कल्चर्स की कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो उसे एथनोलॉजी कहते हैं. Fahad developed a hypothesis linking to migration to poverty. After fieldwork, his hypothesis was accepted. He is at which stage? Interpretation. A researcher who lives in different societies to study human behavior in a cultural context is ethnographer. Morphemes, the smallest units of speech that convey meanings. जैसे कि artist में अगर देखें art, ist and s. By standing alone or being bound to other words. इन्हें morphemes कहते हैं. Smallest unit जो होते हैं speech में जो इस्तेमाल होते हैं. Birthday gifts are an example of balanced reciprocity. Reciprocity के आगे हम 3 types पढ़ेंगे. Balanced reciprocity कहते हैं जब आप equal चीज़ वापस करते हैं of equal value or within a given time. Who distinguished between societies based on mechanical solidarity and organic solidarity? Emile Durkheim. Which theory focuses on how local people interpret their own values and behaviors? Interpretive anthropology. Barter and exchange of goods are distinguishing characteristic of which economic system? Market exchange. All food obtaining strategies cannot be seen as mutually exclusive. Which theory relies on scientific, empirical, and ethic approach? Cultural materialism. Which variable is capable of affecting change in another element? Independent variable. Independent variable जो है change ला सकता है dependent variable के अंदर. The discovery of fishing technology and the use of fire emerged in which developmental stage? Middle savagery. ये आगे हम जो है development की stages पढ़ेंगे तो इसमें से एक अदद MCQ ज़रूर आ जाता है. The rules that determine how words should be combined to make sense are known as syntax. The Navajo language has verbs that contain more information than English. The idea that different cultures see the world differently due to language is the basis of the Sapir-Whorf hypothesis. French, English, and Spanish belong to which language family? Indo-European. A person assessing the effectiveness of women's empowerment package in Punjab would be called a evaluator. Which linguistic term refers to words that are culturally significant? Cultural emphasis. Cultural emphasis कहते हैं कि for some reason एक कल्चर में एक किस्म के जो वर्ड्स होंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे. जैसे कि अगर कोई ऐसी सोसाइटी है जो ऑफिस में ज़्यादा काम करती है या टेक्नोलॉजी के साथ ज़्यादा रिलेटेड है तो उनकी जो लैंग्वेज होगी उसमें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है वो वर्ड ज़्यादा होंगे. Which kingship function provides a social continuity by binding together multiple generation? Vertical function. Kingship के दो functions होते हैं, एक vertical function, एक horizontal function. जो एक generation को दूसरी generation से जोड़ता है, जैसे कि बाप, दादा, बेटा, इसे कहते हैं vertical function. जो horizontal function होता है वो दो same generation के लोगों को आपस में जोड़ता है, जैसे भाई बहन या फिर cousins. Which type of anthropology is concerned with refining methods and theories? Pure anthropology. Which branch refers to comparative and analytical study of cultures? Ethnology. Which appears in a language without being attached to other words? Free morpheme. According to kinship, consanguineal relations are blood relations.
In many countries, men are expected to earn income outside the home while women care for the home and children. This practice is gender role. The zakat system in Pakistan is an example of redistribution, a process where goods are taken from nature and altered into consumable goods is called production. Linguistic anthropologists study language and speech. Choosing species that maximize calorie intake for time spent hunting gathering is called optimal foraging. इस पे जो है शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि ज़्यादा टाइम लगाते हैं किसी ऐसे शिकार को ढूंढने में जिसमें कैलोरीज ज़्यादा हो, वो आपको ज़्यादा देर तक जो है फुल रखे. The revolution involving information technology, open markets, and privatization is known as globalization. Maladaptive aspects of culture include पोल्यूशन. माल अडाप्टिव एस्पेक्ट जो होते हैं कल्चर के, वो पॉइंट्स होते हैं, वो फीचर्स होते हैं जो आपके कल्चर का हिस्सा होते हैं लेकिन आपको नुकसान दे रहे होते हैं. इसके बरक्स जो अडाप्टिव फीचर्स होते हैं वो आपके कल्चर का हिस्सा होते हैं लेकिन आपको फ़ायदा दे रहे होते हैं. Son, father, and grandfather categorized together is an example of lineality. The study of past cultures through excavation of material remains is called archaeology. Thinking one's own culture is superior to others is called ethnocentrism. Collecting basic demographic data at the start of fieldwork is known as census taking. Which term describes any society with cities? Civilization. Two different forms of language in society, for example high and low. मतलब कह सकते हैं कि फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. फॉर्मल जो हमारे ऑफिस में या फिर जुडिशरी में इस्तेमाल होते हैं, लो जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं, इसे कहा जाता है डिग्लोसिया. A general statement about how facts are related is theory. What provides the sound structure of a language? Phonology. What is the basic social unit among food collectors? Family. Contemporary food collecting societies have low population density. The psychological reaction to being in a different culture is called cultural shock. Behavioral data is often collected through interview. Goods and services transferred from producers to users are a part of distribution. English is derived from which dialect family? Germanic. यानी कि Germany is the mother tongue of English. The process of studying different cultures and their similarities is called cultural anthropology. According to ethnolinguists, language shape our thoughts. एथनोलिंग्विस्ट का ये मानना है कि जो ज़ुबान आप बोलते हैं आपके ख़यालात पर उसका असर होता है. In which descent can individuals select only one line, male or female, to trace descent? Ambilineal. Which exchange system is most common in societies with political bureaucracies? Redistribution. Foragers are called the original affluent society because they enjoy leisure time. Institutions found worldwide, family, religion, etc. are called cultural universals, यानी कि जो हर कल्चर का हिस्सा होता है. Exchange of goods or services of roughly equal value between two partners is called reciprocity. Food production became important for humans about 10,000 years ago. Sociolinguistics examines the link between languages and social structures. Which kingship system emphasizes patrilineal descent? Omaha. A useful production method of horticulturist is slash and burn technique. What percentage of food for contemporary food collectors is vegetation? 80%. Pottery making indicates which developmental stage? Lower barbarism. इसको हम आगे पढ़ेंगे. A highly specialized society like the US exemplifies organic solidarity. Which analysis studies language structures at a single point in time? Synchronic analysis. और diachronic analysis में आप पढ़ते हो कि कैसे language जो है change हुई है over time. Judging other cultures by one's own standards is ethnocentrism. Which language lacks singular plural nouns? Navajo. Subsistence based on tending herds of large animals is pastoralism. Which descent accommodates two sides simultaneously? Bilateral. English, French, and Spanish are
sister languages. Physical anthropology studies humans from a biological perspective. ये हमारे पास MCQ है. Which theory is influenced by cultural relativism and ethnoscience postmodernism? इनका कहना है कि आप जो है एक थ्योरी सारे कल्चर्स को जो है एक्सप्लेन नहीं कर सकती, सारे कल्चर्स पर अप्लाई नहीं हो सकती. The earliest human survival stage, fruits, nuts, is called lower savagery. Kingship function providing solidarity within the same generation is horizontal function. Which theory is criticized as overly theoretical and hard to verify empirically? Structuralism. Close communication systems are associated with animals. Language is random due to its diversity. Kinship organization dividing society into two halves create moieties. Functionalism seeks to understand culture from the viewpoint of natives, जो उस culture के रहने वाले हैं. Which marriage arrangement is characterized by a woman having more than one husband at the same time? Polyandry. Which marriage transaction involves the groom performing labor in exchange for a wife, often found in societies lacking material wealth? Bride service. Subjective preparation question number 1. Name and explain the branches of anthropology. सबसे पहले आती है physical anthropology. It is the study of humans from a biological perspective. इसके आगे से दो टाइप्स हैं. Human paleontology में जो है हम पढ़ते हैं कि इंसान कैसे इवॉल्व हुए. ह्यूमन वेरिएशन में हम पढ़ते हैं कि अभी राइट नाउ दुनिया में एक कोने में इंसान हो और दूसरे कोने में इंसान हो तो वो एक दूसरे से वेरी किस तरीके से कर रहे हैं, चेंज कैसे हैं एक दूसरे से. आर्कियोलॉजी है ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी. आर्कियोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि पुराने ज़माने के लोग जो है उनका कल्चर पढ़ते हैं उन चीज़ों से जो कि वो छोड़ के चले गए हैं. एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक जो है वो ह्यूमन स्पीच और लैंग्वेज को पढ़ते हैं. कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज अराउंड द वर्ल्ड. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एथनोग्राफी एंड एथनोलॉजी? फिर ये जो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी इसके आगे से दो टाइप्स हैं, एथनोग्राफी एंड एथनोलॉजी. एथनोग्राफी जो है डिटेल स्टडी होती है किसी एक स्पेसिफिक कल्चर की. ऑन द अदर हैंड जो एथनोलॉजी है ये दो या दो से ज़्यादा कल्चर्स की कंपैरेटिव स्टडी होती है, यानी कि कंपैरिजन के लिए जो पढ़ा जाता है. What are the areas of specialization in cultural anthropology? सबसे पहले अर्बन एंथ्रोपोलॉजी. इसमें जो है अर्बनाइजेशन का क्या असर रहा है रूरल सोसाइटीज़ में और डायनामिक्स ऑफ लाइफ विद इन द स्टडीज़, इसको पढ़ा जाता है. मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी में आप बायोलॉजिकल और सोशो कल्चरल फैक्टर्स पढ़ते हो जो कि इंसान की सेहत पर असरअंदाज होते हैं और कैसे वो बीमारियों के फैलने में या फिर उनको रोकने में असर दिखाते हैं अपना. एजुकेशनल एंथ्रोपोलॉजी में आप जो लर्निंग के प्रोसेसेस हैं बोथ फॉर्मल एजुकेशन एंड इनफॉर्मल एजुकेशन उनको पढ़ते हो. इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी में आप पढ़ते हो कि कैसे हर कल्चर अपने गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है और फिर उन्हें कंज्यूम करता है, यूज़ करता है. साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में आप जो है कल्चर का और उस कल्चर का क्या असर हुए उसमें रहने वालों लोगों पर उसको पढ़ते हो. यानी कि आप ये कहते हो कि जो पर्सनैलिटी इंसान की बनती है वो उसके कल्चर से बनती है. द पर्सन इज़ नॉट बोर्न विद इट. What are the common responses to cultural differences? Cultural differences में एक तो बंदा कहता है कि ये तो सारा गंद है, मैं ही हूँ, मतलब मेरा कल्चर ही अजीम है. एथनोसेंट्रिज्म होता है ये. Believe that one's own culture is not only the most desirable but also superior to that of others. Cultural relativism में जो है आप उसका inherent logic जो होता है हर कल्चर के पीछे उसको समझते हो और रिस्पेक्ट करते हो उसकी. Define adaptive and maladaptive features of a culture. एडाप्टिव फीचर्स जो होते हैं वो आपको फ़ायदा देते हैं. कल्चरल ट्रेड्स, कस्टम्स और इंस्टीट्यूशंस दैट हेल्प अ सोसाइटी सर्वाइव, कोऑपरेट एंड फंक्शन स्मूथली. फॉर एग्जांपल एजुकेशन सिस्टम. मैल अडाप्टिव जो होते हैं वो आपके लिए हार्मफुल होते हैं, कल्चर का हिस्सा होते हैं बट हार्मफुल होते हैं. फॉर एग्जांपल ओवर कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज. If a society uses up all its water or cuts down all its trees, it will eventually collapse. Differentiate pure anthropology from applied anthropology. प्योर एंथ्रोपोलॉजी में आप जो है थ्योरीज को जो है लॉस को उनको रिफाइन करने की कोशिश करते हो, सारा थ्योरेटिकल काम होता है. अप्लाइड में आप जो है एंथ्रोपोलॉजी को रियल लाइफ सिनारियोज में अप्लाई करते हो फॉर द बेटरमेंट ऑफ humans. What are the specialized functions for applied anthropologist? सबसे पहले है पॉलिसी रिसर्चर.
ये क्या करता है कि कल्चरल डाटा इकट्ठा करता है और पॉलिसी मेकर को वो सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है। फिर जब पॉलिसी मेकर ने पॉलिसी बना दी तो एवेल्युएटर का काम होता है कि वो देखे कि पॉलिसी जो है वो सक्सेसफुल हो गई, उसने अपने जो गोल्स हैं ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव कर लिए। इम्पैक्ट असेसर उस पॉलिसी का असर देखता है। नीड्स असेसर देखते हैं कि किसी चीज़ की ज़रूरत है किसी भी कम्युनिटी ऑफ पीपल को, यूजेस रिसर्च स्किल टू डिटरमिन पर्टिकुलर नीड्स ऑफ कम्युनिटी ऑफ अ पीपल। ट्रेनर जो है वो कल्चरल नॉलेज को आगे जाके डिफरेंट ग्रुप्स में बांटता है, उन्हें सिखाता है, फॉर एग्जांपल एनजीओज वगैरह में। क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन ईच कल्चर गोज थ्रू। सबसे पहली है लोअर सेवेजरी, इसमें जो है फ्रूट्स एंड नट्स का इस्तेमाल किया जाता था। फिर आती है मिडिल सेवेजरी, इसमें फिशिंग और यूज ऑफ फायर। अपर सिविजरी में बो एंड एरो कन्वेंशन हो गया था। ये सारे सिविजरी में आते हैं। ये फिर आते हैं तीनों बार्बरिज्म में, और फिर आते हैं सिविलाइजेशन। लेकिन फिर इनको जो है 3 सब टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, और बार्बरिज्म को भी। लोअर बार्बरिज्म की बात की जाए तो इट बिगेन विद द आर्ट ऑफ पॉटरी मेकिंग। मिडल बार्बरिज्म में जो है इंसानों ने अपना प्लांट्स वगैरह उगाना शुरू कर दिया था और एनिमल्स को जो है रखना शुरू कर दिया था घरों में। अपर बार्बरिज्म इज इट बिगेन विद द स्मेल्टिंग ऑफ आयरन एंड यूज ऑफ आयरन टूल्स जो है वो शुरू हो गया था। सिविलाइजेशन में या पढ़ने लिखने के जो लोग काबिल हो गए थे, इसकी इन्वेंशन जब हो गई थी, इसे कहते हैं सिविलाइजेशन। वट आर द गाइडलाइंस फॉर पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन ये होता है कि आप जो है उस कल्चर का हिस्सा बनकर उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में जो है उसको रहना स्टार्ट कर दें उनके साथ, और फिर जो है आप देखें कि उनका कल्चर कैसा है। तो इसके लिए गाइडलाइंस जो है वो यही होती हैं कि आपने जो है उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखना होता है, और आपने जो है मतलब अगर वो कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो उनके कल्चर में है और आपके वाले में नहीं है, तो आपने उसकी रिस्पेक्ट करनी होती है, एंड ऑल दैट। यस। What are the stages involved in field work? सबसे पहले होता है आपने रिसर्च प्रॉब्लम सेलेक्ट करना होता है, कोई ऐसा टॉपिक जो कि जिस प्रॉब्लम सेंटर्ड हो। फॉर्मुलेटिंग रिसर्च डिज़ाइन, उस रिसर्च को किस तरीके से करना है। कलेक्टिंग द डाटा, फिर उसको एनालाइज करना है, इंटरप्रेट करना है, और ये दोबारा रिपीट हो गया। व्हाट आर इकोनॉमिक यूनिवर्सल्स, यानी कि जो दुनिया में हर जगह पाए जाते हैं। रेगुलेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि जो रिसोर्सेज हैं लैंड वगैरह इन सबको इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। फिर प्रोडक्शन, हाउ मटेरियल सोर्सेज जैसे कि शुगर केन है उनको यूजेबल चीज़ों में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। एक्सचेंज, हाउ द कमोडिटीज वंस प्रोड्यूस्ड आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल ऑफ द सोसाइटी। पहले के रिसोर्सेज को इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, फिर उनसे रॉ मटेरियल से जो है यूजेबल चीज़ें कैसे बनाई जाएंगी, और फिर उनको लोगों में कैसे तकसीम किया जाएगा। ये सारे जो है पूरी दुनिया में जहाँ भी चले जाइए इकोनॉमिक यूनिवर्सल्स वहाँ पाए जाएंगे। What is the division of labor in the context of mechanical and organic solidarity? How does it affect independence? इमाइल दुर्खेम जो है उन्होंने कहा था कि 2 किस्म की सोसाइटीज होती हैं, एक होती है सिंपल सोसाइटी, एक होती है कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। सिंपल सोसाइटी जो है उनमें रहने वाले लोगों को अपने काम जो होते हैं वो आते हैं, वो इकट्ठे इसलिए रहते हैं क्योंकि उनके अंदर सिमिलैरिटीज होती हैं। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज हैं उनमें रहने वाले जो है वो स्पेशलाइज्ड काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर है तो उससे उसी से रिलेटेड सारे काम आते हैं, एक टीचर है तो उसे टीचिंग आती है, और वगैरह वगैरह। इसीलिए वो लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, तो उन्हें उस सॉलिडेरिटी को कहा जाता है कि ये ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी है। तो इसकी एक एग्जांपल अमेरिका है। व्हाट आर द 3 मोड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के एक तो है रेसिप्रोसिटी, कि आप एक्सचेंज करो गुड्स एंड सर्विसेज को। ऑलमोस्ट ऑफ इक्वल वैल्यू बिटवीन 2 ट्रेडिंग पार्टनर्स, मैंने आपको कुछ दिया, आपने मुझे इक्वल वैल्यू का कुछ दे दिया। फिर है रीडिस्ट्रीब्यूशन, मोस्ट कॉमन इन सोसाइटीज विद पॉलिटिकल bureaucracies in a form of exchange where goods and services are given by central authority and then reallocated to create new patterns of distribution. For example, ज़कात सिस्टम रीडिस्ट्रीब्यूशन में आता है कि सब लोग पैसे जमा करें किसी अथॉरिटी के पास, और फिर वो अथॉरिटी उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करे बाकी लोगों में जो कि उसके मुस्तहिक है। Market exchange system it involves the use of standardized currencies to buy and sell goods and services, यानी कि इसमें जो है आप चीज़ें पैसों से खरीदते हो। डिफाइन रेसिप्रोसिटी एंड गिव इट्स टाइप्स। रेसिप्रोसिटी में यानी कि जो एक्सचेंज होता है गुड्स का या सर्विसेज का ऑफ इक्वल वैल्यूज, उसमें सबसे पहले आता है जनरलाइज्ड रेसिप्रोसिटी। जनरलाइज्ड रेसिप्रोसिटी इन्वॉल्व्स गिविंग गिफ्ट्स विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ इमीडिएट रिटर्न, यानी कि आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि मुझे कुछ मिलेगा, आप एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हो। बैलेंस्ड रेसिप्रोसिटी में इट इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द एक्सपेक्टेशन दैट द इक्विवेलेंट वैल्यू विल बी रिटर्न विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। इसमें बर्थडे गिफ्ट की एग्जांपल आ सकती है। नेगेटिव रेसिप्रोसिटी एक आप कम वैल्यू वाली चीज़ दे देते हो और फिर आप
जो है एक्सपेक्ट करते हो कि मुझे इससे थोड़ा ज़्यादा फ़ायदे वाली चीज़ मिलेगी। गिव द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, सबसे पहले आता है फोनोलॉजी। इट प्रोवाइड्स द साउंड स्ट्रक्चर टू अ लैंग्वेज। मॉर्फीम जो है स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं स्पीच के, जो कि मीनिंग कन्वे करते हैं बाय स्टैंडिंग अलोन और बीइंग बाउंड टू अदर वर्ड्स। ग्रामर जो है ये प्रॉपर रूल्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज के। व्हाट इज द सैपिर-वोर्फ हाइपोथेसिस? इनका मानना है कि जो जुबान हम बोलते हैं उसका हमारे थॉट्स पर असर होता है। According to this hypothesis, different cultures see the world differently due to their different languages. Language influences and channels our perceptions and thus shapes our resulting behavior as well. The hypothesis has conducted several tests in the attempt to validate its claim. यानी कि अभी तक ये validated है। Name the strategies of obtaining food. सबसे पहले है फूड कलेक्शन, देन हॉर्टिकल्चर, यानी कि यहाँ पे जो शिकार वगैरह इसमें आ जाता है। हॉर्टिकल्चर आप स्मॉल स्केल पे जो फार्मिंग करते हो। पेस्टोरिज्म यानी कि आप जो जानवर पालते हो घर में। और एग्रीकल्चर जो है ये लार्ज स्केल में जो फार्मिंग होती है उसे कहते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है बायोटेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल होता है खाना ऑब्टेन करने के लिए। गिव द डिफरेंस बिटवीन हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर। हॉर्टिकल्चर स्मॉल स्केल फार्मिंग है और जो एग्रीकल्चर है लार्ज स्केल है। इसमें यूज़ ऑफ इरिगेशन या फर्टिलाइजर्स नहीं होता, इसमें होता है। इसमें बाकी जो आम लोग होते हैं वो अपने काम कर रहे होते हैं, यानी कि घर में ही फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं। एग्रीकल्चर में जो है ना फिर आपको जो है लोगों को बुलाना पड़ता है और मशीन्स का भी यूज़ करना पड़ता है, यानी कि इसमें जो है इंसानों की इनपुट होती है, इसमें मशीन्स का भी इनपुट होता है। यस। व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स? हॉर्टिकल्चर आपको जो है 3 किस्म की क्रॉप्स देता है। ट्री क्रॉप्स जैसे कि बनाना, डेट्स वगैरह, और सीड क्रॉप्स जो कि हाई इन प्रोटीन होते हैं जैसे कि वीट, बार्ले, राइस वगैरह, एंड देन रूट क्रॉप्स जो कि हाई इन स्टार्च एंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जैसे कि पोटैटोज और स्वीट पोटैटोज। How horizontal and vertical functions of kinship contribute to continuity and solidarity? Vertical function जो आपको एक जनरेशन को दूसरे जनरेशन से जोड़ता है जैसे कि दादा, बाप, बेटा, पोता। Horizontal function जिसमें सेम जनरेशन के लोगों को आपस में जोड़ा जाता है जैसे कि siblings, friends, cousins. Define unilineal descent and give examples. Unilineal descent is a kinship system where a person traces their ancestry and inheritance through only one parent's line, या तो अम्मा से या तो अब्बा से। For example, in traditional Arab or Chinese clans, the child belongs to the family's family group. Explain the social significance of family. सबसे पहले जो सोशलाइजिंग यूनिट आपको मिलती है वो आपकी अपनी फैमिली होती है। इमोशनल सपोर्ट भी देती है, सोशल आइडेंटिटी देती है आपको, आपका नाम, बैकग्राउंड, रिलीजन, सोशल स्टेटस आपकी फैमिली देती है। रेगुलेशन ऑफ रिलेशनशिप्स, फैमिली सेट रूल्स फॉर मैरिज एंड रिलेशनशिप्स एंड इंश्योर्स children are raised responsibly. इकोनॉमिक सपोर्ट भी देती है। What are the specifications and limitations of cultural anthropology? Specifications ये है कि in depth study होती है और एक कल्चर पर फोकस किया जाता है। फील्ड वर्क में रिसर्चर जो है कम्युनिटी के साथ रहता है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में जो है उनकी डेली लाइफ में पार्टिसिपेट करता है। इंटरव्यूज में क्या होता है कि टॉकिंग डायरेक्टली टू पीपल टू अंडरस्टैंड बिलीव्स, इसमें स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड दोनों इंटरव्यूज आ सकते हैं। हॉलिस्टिक व्यू यानी कि स्टडी को एज अ होल जो है स्टडी किया जाता है, सॉरी कल्चर को एज अ होल स्टडी किया जाता है, ना कि उनको कैटेगरीज में डिवाइड करके। लिमिटेशंस क्या है इसकी कि टाइम कंज्यूमिंग है। एक कल्चर को आप स्टडी करोगे उसमें बहुत ज़्यादा लोगों से आपको मिलना पड़ेगा और ये सारी चीज़ें अप्लाई करनी पड़ेंगी। कॉस्टली है यानी कि बहुत ज़्यादा पैसों की, रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। रिसर्चर बायस यानी कि इंसान के अपने कल्चरल जो व्यूज़ हैं वो दरमियान में आ सकते हैं। लिमिटेड जनरलाइजेशन, रिजल्ट अप्लाई टू वन कल्चर ओनली। आप इतना ज़्यादा टाइम लगाओगे तो सिर्फ आपको एक कल्चर के बारे में जो है सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ऑब्जर्वर इफेक्ट जो है, पीपल में चेंज बिहेवियर व्हेन वॉच्ड, यानी कि अगर आप उनके साथ रह रहे हो तो हो सकता है वो अपना बिहेवियर चेंज कर ले क्योंकि इंसान है आफ्टर ऑल। एथिकल इश्यूज, प्राइवेसी और कंसर्न कैन बी डिफिकल्ट। कुछ लोग हो सकते हैं आपको इजाजत ना दें इस चीज़ की। डिफाइन पॉलीगेमी एंड मोनोगेमी विद एग्जांपल्स। मोनोगेमी यानी कि ऐसे दो एडल्ट्स के दरमियान में जो है शादी होना, जो यानी कि एक मर्द और एक औरत के दरमियान में शादी होना। और पॉलीगेमी में जो है यानी कि आपके जो स्पाउसेस हैं वो दो या दो से ज़्यादा हैं। फॉर एग्जांपल पॉलीएगनी में यानी कि वन मैन मैनी वाइफ्स, और पॉलीएंड्री में वन वुमेन मैनी हस्बैंड्स। हाउ डज कल्चर इन्फ्लुएंस किनशिप क्लासिफिकेशन? Culture shapes kinship by social rules, not just blood relations. Relationships are defined by living together, descent, and duties. For example, in Bina Bina society, people who live together are treated as kin even without blood ties. और नवाजो कल्चर की बात करें तो kinship follows the mother's line, यानी कि
matrilineal clans and guides and social duties. Gender roles, lineage, fathers or mother's side, and economic needs affect kinship, and these differ from society to society. यानी कि एक सोसाइटी में हो सकता है कि मदर की फैमिली को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए और उनका जो है नस्ब अपनाया जाए, और एक में हो सकता है कि फादर वाले को अपनाया जाए। तो कल्चर टू कल्चर ये चीज़ वेरी करती है।